Good morning, my dear students. So let's continue the revision of the chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. So yesterday we have discussed few questions related to that chapter. So we are going to continue with few more questions for the revision of this chapter. So write down date. Open your classwork notebook. Write down date 6 January 2026. Chapter aldehyde ketones and carboxylic acids. Okay, so let's do first question, exam based question. So the question is, write the chemical test to distinguish between each of the following pairs of compounds. So the question is, write the chemical test to distinguish. अब हमें क्या करना है? केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, कंपाउंड दिए हैं आपको, इसमें बताना है कि अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम देयर नेम, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं. वन इज़ इथेनॉल विच इज़ अल्कोहल एंड अदर वन इज़ प्रोपेन वन अल है तो क्या होगा? एल्डिहाइड. ठीक है, टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर देयर. अदर वन इज फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. If we want to distinguish between ethanol and propane 1-ol, so how we can distinguish it? So there are different types of tests we have discussed in the last video. There are examples like iodoform test, tolerance reagent test, and sodium bicarbonate test. Okay, so firstly हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से अल्कोहल कौन सी है और हमारे पास अदर ग्रुप्स कौन से हैं. और हमें ये क्लियरली पता है कि जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ आइडेंटिफाई कर जाते हैं. आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेंगे, जैसे कि इथेनॉल है तो इथेनॉल ऐड करेंगे. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू ऐड अ फ्यू ml ऑफ आइडोफॉर्म. और जैसे ही हम उसमें आइडोफॉर्म ऐड करेंगे, इट विल गिव्स अस अ येलो पीपीटीज. So if the yellow PPTs is formed, then it confirms the presence of alcohol. Whereas on the other hand, if we talk about the aldehyde group do not react with the iodoform. So if we are similarly, we will take different test tube, we will pour this compound solution in that test tube, we will add iodoform in that test tube, no yellow PPTs are there. So agar to yellow PPTs bane, so from this crux we can identify or we can conclude that if there is a formation of yellow PPTs, it confirms the presence of ethanol with the help of which test? That is a iodoform test. So I am writing here, if there is a, I'm giving you a crux. ठीक है, as we know it gives iodoform test. ठीक है, जैसे ही हम आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो कन्फर्मेशन किससे होती है? कन्फर्म्स विद द फॉर्मेशन ऑफ yellow precipitates. If there is a formation of yellow precipitates, it confirms the presence of ethanol. बट अगर हम इसी के साथ वाला जो अदर दिया हुआ है उसकी बात करें तो हमारे पास जो प्रोपेन 1-ol है, it does not gives yellow PPTs on reaction with iodoform. तो अगर जो दे देगा तो उससे हमें क्या कंफर्म हो गया? ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज द आंसर कि हम उससे येलो पीपीटी से कंफर्म कर सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट, दैट इज फिनोल एंड benzoic acid. Put a test
ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एवरी ईयर, ठीक है। अब फिनोल है, ओल अगेन एल्कोहल, बट यहाँ पे कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे विद द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आइडेंटिफाइड with the sodium bicarbonate test. Okay, so what will happen with that? If in case of phenol we are adding sodium bicarbonate solution, no brisk effervescence will be there. Okay, कोई भी brisk effervescence नहीं होगी। And if we are adding benzoic acid में हम ऐड करें सोडियम बाइकार्बोनेट, it will show brisk effervescence. So it confirms the presence of benzoic acid. आपको एक ही की प्रेजेंस कंफर्म करनी है, दोनों की नहीं, ठीक है। एक इंटरप्रेट हो गया, एक प्रेजेंट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स वो चीज़ नहीं है, इसलिए ये शो हुई है हमें। ओके, यू आर सपोज टू कंफर्म वन थिंग्स बट यू आर सपोज टू राइट द रीज़न फॉर अदर ऑल्सो। आंसर अटैम्प्ट करते वक्त आपने ये नहीं करना कि ये प्रेजेंट इसलिए है। सपोज हम इतना लिख दें सिर्फ कि इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो ये कंफर्म करता है, नो, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि वो येलो प्यूबिटिस फॉर्म नहीं करता। सिमिलरली आपको दोनों का रीज़न जस्टिफाई करना है, नॉट जस्ट फॉर द वन कंपाउंड। इफ़ यू आर सपोज writing the reason for the only phenol, that on the addition of sodium bicarbonate no effervescence is there, how I am supposed to interpret, what will be the reason, कैसे होगा? तो इसलिए आपको दोनों का रीज़न जस्टिफाई करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। So the next question is, what happens when carbonyl compound is treated with zinc amalgam and concentrated HCl? अब आपको क्लियरली बता दिया है कि क्या होगा, ठीक है। पूछा गया है क्या होगा जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करें जिंक अमेलगम के साथ, उसके साथ हम ऐड करें कंसनट्रेटेड HCl। गिव केमिकल इक्वेशन एंड राइट नेम ऑफ द रिएक्शन। आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है और नेम ऑफ द रिएक्शन बतानी है। सो बेटा, जैसे ही हम जिंक अमेलगम को ऐड करेंगे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग रिएजेंट के साथ, या वी कैन से उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, सो इट विल रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन्स। वो क्या करेंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन में। सो कार्बोनिल कंपाउंड, आई एम गिविंग यू हिंट, यू आर सपोज टू राइट प्रॉपर्ली, कार्बोनिल कंपाउंड्स reduced to हाइड्रोकार्बन्स। किस में रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। और इसकी आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन। सो लेट्स राइट एन इक्वेशन, RCOR डैश, इट इज नहीं था, ये एक हमारे पास जनरल इक्वेशन है और हमें पता है कि क्लेम्सन रिडक्शन इज देयर, ठीक है। क्लेम्सन रिएक्शन इज देयर, जिंक अमेलगम की प्रेजेंट में होती है और उसके साथ हम ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड HCl। जैसे ही हम उसकी एडिशन करेंगे वी विल गेट RCH2R डैश, विल गेट दिस वन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन बन गई, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया हमारे पास। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, नेमिंग रिएक्शन, दैट इज अ
Clemson's reaction. The reaction is called Clemson's reaction. Okay, so I hope you have clarity regarding this. So let's proceed to the next question. So what the next question says that write the chemical equation to convert each of the following. Straightforward direct question कि आपको ये दो ऑप्शंस दी हैं, सब पार्ट्स दिए हैं, आपको इसको कन्वर्ट करना है और आपको रिएक्शन लिखनी है. ठीक है. फर्स्ट इज एसिटिक एसिड टू एसिटल एल्डिहाइड and second is formaldehyde to urotropine. But a urotropine is the new word for you people, which is also known as, sometimes it is written as urotropine or sometimes it is written as hexamethylene tetraamine. Okay, the other name of urotropine is hexamethylene methyl tetraamine. So the first part of 9th question, that is write the chemical equation to convert acetic acid to acetaldehyde. So firstly write the formula, that is CH3COH, and along with that, on the addition of thionyl chloride, we will get CH3COCl, and again we will add hydrogen in the presence of palladium or barium sulfate, that will get aldehyde. Okay, so this is the first conversion. Second is formaldehyde. The formula of formaldehyde is CHO plus NH3 will get C6H12N4 plus, along with that we have a water. How I'll get this? Firstly we have to balance this. We are supposed to write 4 over here and 6 over here. So 6 carbon is there, 6 carbon is there. Now 6 hydrogen, 6 and 6 will be 12 hydrogen. 12 hydrogen is there. How many nitrogens is there? 4 nitrogen is there. ठीक है, जितने H बचे वो यहाँ पे हैं, इसको भी बैलेंस करें तो we'll add 6 over here, then it is balanced now. Now it is balanced. So this chemical compound is called as urotropine, okay, which is also known as hexamethylene tetraamine. अगर आपको हेक्सामेथाइल टेट्रामाइन में चेंज करने के लिए बोला जाए तब भी ये कन्वर्जन आएगी, और आपको अगर डायरेक्टली यूरोट्रोपाइन बोला जाए तो तब भी ये कन्वर्जन आएगी. सो इट मीन्स देयर इज अ 2 names of 1 chemical reagent. Okay, so this is all about this question. So let's move to the next question. So next question is, how will you convert the following reaction? फिनोल को अगर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है, ठीक है, फ्रॉम benzene sulfonic acid, if we want to prepare phenol, how we can convert it? So let's see how we can convert this. तो बेटा इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, और पहले आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको. देन इट्स वेरी इजी टास्क फॉर यू पीपल. Okay, so the benzoyl sulfonic acid is, just wait, C6 benzoate, sorry, okay, in the presence of sodium hydroxide on fusion it gives C6H5ONA
हमें चाहिए क्या, फिनोल। अगेन हमें HCl की एडिशन करेंगे, we'll get C6H5OH plus NaCl. Okay, so this will be the reaction, or we can say conversion. So next is ethyl alcohol from ethylamine. ethylamine से हमें इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ethylamine, that is C2H5NH2 in the presence of sodium nitrate HCl along with temperature required 0 to 5 degrees Celsius, it converts into C2H5OH, that is ethanol. Sorry, it is C2H5OH, ethyl alcohol plus N2 plus H2O. Okay. Next is aldehyde. Next question is, this part you are gonna do this by yourself. One part, how will you convert the following, का जो B part और C part है ये आप खुद करेंगे. I think I have done the B part also, so you are supposed to write the C part only and then discuss MCQ part. Okay, so MCQ में हमें क्या बताया गया है कि an organic compound with molecular formula C3H6O does not give silver mirror test with tolerance reagent but gives an oxime and hydroxylamine. So पहले स्टेटमेंट समझे, अंडरस्टैंड दिस कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया है कि क्या है हमारे पास C3H6O, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका, दैट मीन्स कि 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ये जो है ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहे। जब हम इसमें टॉलरेंस रिएजेंट ऐड कर रहे हैं इसको टेस्ट ट्यूब में लेके, तो उसकी एडिशन पे नो सिल्वर मिरर टेस्ट शुड बी डिटेक्टेड, बट इसकी ये ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑक्साइम बना रहा है और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सल अमाइन प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है कि इनमें से विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन and why and how you are supposed to choose this option. So beta, in this MCQ we are supposed to apply odd one out rule, ठीक है। हम odd one out rule अप्लाई करेंगे यहाँ पे, odd one out कि यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता। अब ऑक्साइम की अगर हम बात करें तो ऑक्साइम का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास R2C double NH, ठीक है। ये मैं अभी आपको जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। इन केस ऑफ कीटोन्स इट रिएक्ट्स ऑल्सो इन केस ऑफ एसीटोन्स एंड अदर कीटोन्स ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। सो फर्स्टली हमें बताया क्या गया है कि ये वो है जो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि एल्डिहाइड क्या करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो वो तो सिल्वर मिरर के टेस्ट मतलब हम उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे तो वो हमें रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे देंगे। सो ऑप्शन ए शुड नॉट बी द पार्ट, जो ऑप्शन ए है वो नहीं हो सकती।
ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ऑप्शन बी, लेट्स प्रोसीड टू ऑप्शन सी फर्स्ट। सो यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? दैट इज़ अ एल्कोहल ग्रुप। तो एल्कोहल ग्रुप में हमारे पास ऑक्साइम की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसने क्यों क्या बताया कि ये तो चलो रिएक्ट तो कर जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइम की फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमें ऑक्साइम की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप। बट हियर वी डोंट हैव दैट कार्बोनिल ग्रुप, सो इट लैक्स कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को भी नहीं चूज कर सकते। सो लेट्स प्रोसीड दिस ऑप्शन, ऑप्शन डी। व्हाई नॉट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी क्या है अब? इट इज़ एन ईथर, आर ओ आर डैश बन रहा है हमारे पास, ठीक है, दिस इज एन आर चेन, ओ एंड आर। तो इट्स ऑल्सो डोंट हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, so it is also don't have a carbonyl group, so they are not capable to form a oxime। वो भी क्या करेंगे? oxime नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज, नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। why it is so? Because it have a carbonyl group into it, and it is a ketone. It do not gives a tolerance reagent text, but it forms a oxime and hydroxylamines. So the correct option is option B. Okay, so this is all about this questions for today. I'm giving you 3 more questions related to this chapter for the practice. Okay, and you are supposed to write it on your homework notebook. ये आपने अपने होमवर्क नोटबुक पे राइट करनी है, सो मार्क करें आप। सो बेटा these are the 4 questions. These 4 questions you are supposed to write it on your homework notebooks. Okay, properly आपको ये अपने होमवर्क नोटबुक पे लिखना है रिवाइज करके। थैंक यू।